Assalamu alaikum, dear students. Today for class 8th we are going to discuss a topic. It is agricultural development. As you know that we are studying the chapter agriculture, and our last topic was major crops. In this topic we have already studied the different crops like rice, wheat, maize, millet, tea, coffee, cotton, jute. We have already studied different types of crops which are grown all over the world, and also we have studied the major important aspect, that is their distribution. Different types of crops grown in different parts of the world. And today our topic will be agricultural development. Let's first see what's agricultural development. See, agricultural development, we can define it as it refers to the efforts made to increase the production in order to meet the growing demand of increasing population. Actually, what the problem is, world's population, it's growing tremendously. Population of world, it's growing tremendously. We can say the explosion, population explosion have already happened. Good, the growth rate of world's population, it is still very high, although it has decreased to some extent, but it is still very high, especially in developing countries. So if we compare this population of the world with the world's land area, land, it remains the same. It neither increases nor decreases. But the population of the world, it is increasing continuously. It has increased since ages and it is continuously increasing. Today, world's population is somewhat 8 billion, 800 crore. And the population of India is 130 crore. So we can say that population of the world, it is developing, it is increasing continuously. But land it is a resource of infinite value. Means it remains the same. So what should be done? So efforts has to be made. तो एफर्ट जो है वो करने हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. तो अब क्या करना है, अब जो फूड प्रोडक्शन है, स्पेशली फूड प्रोडक्शन या बाकी अदर क्रॉप्स की प्रोडक्शन, तो इसलिए एफर्ट्स लगाने हैं कि वो फूड प्रोडक्शन स्पेशली जो है वो बढ़ जाए. ठीक है ना, ताकि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, इसकी जो डिमांड है वो पूरी हो सके. ठीक है ना. तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इट सिंपली रेफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. Those efforts in which the production of this agricultural produce, it increases. ठीक है ना. Why it should increase? To meet the growing demand of increasing population. जो increasing population जो है, जितनी भी increasing population हो रही है, इतनी जो है डिमांड भी बढ़ रही है. स्पेशली जो हमारे ग्रेन क्रॉप्स है, इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. तो दिस टर्म इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जिसमें जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इसकी डिमांड्स मीट करने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं हम प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए. दैट्स कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. Now see how we can actually develop this agriculture. This can be achieved in many ways. तो वो ways हम डिस्कस करेंगे, such as इंक्रीज क्रॉपर्ड एरिया. जो क्रॉपर्ड एरिया है, तो लैंड इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन क्रॉपर्ड एरिया जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं हम. क्रॉपर्ड एरिया जो इंक्रीज कर सकते हैं. क्रॉपर्ड एरिया मींस दैट एरिया जिस पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, जिस पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की जाती हैं, उस एरिया को कहते हैं हम क्रॉपर्ड एरिया. ठीक है ना. अगर हम हमारी वर्ल्ड की टोटल लैंड देखेंगे, उसमें कुछ पोर्शन होगा क्रॉपर्ड एरियाज के लिए, कुछ पोर्शन सेटलमेंट्स के लिए, कुछ पोर्शन पे रिवर्स है, कुछ पोर्शन पे माउंटेन्स है. ठीक है ना. तो कुछ पोर्शन पे इंडस्ट्रीज है. तो जो ये स्पेशली किसकी बात हम कर रहे हैं, आई सेड दैट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इट कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज. इसमें से हम एक वे जो है, इट इज इंक्रीजिंग क्रॉपर्ड एरिया. जो क्रॉपर्ड एरिया है वर्ल्ड का, वो इंक्रीज करना है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे इंडिया की जो लैंड है, इसमें क्रॉपर्ड एरिया कितना है, 46%. तो रेस्ट जो 56% है, दैट इज नॉट अ क्रॉपर्ड एरिया, वो बाकी पर्पज के लिए है. ठीक है ना. तो हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग
क्रॉपर्ड एरिया को जो है वो इंक्रीज करना है। अब इस क्रॉपर्ड एरिया को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल हम फॉरेस्ट एरिया इंक्लूड कर सकते हैं क्रॉपर्ड एरिया में, बट दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इससे डिफॉरेस्टेशन होगी, फॉरेस्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जो बेस्ट मेथड हम कह सकते हैं, जो हमारे पास जो हम कह सकते हैं जो बंजर ज़मीन होती है हमारे पास, ठीक है ना, अनकल्टिवेटेड, जिस पे हम कल्टिवेशन नहीं करते हैं, जो वेस्ट लैंड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, जो वेस्ट लैंड्स है इनको कन्वर्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चरल लैंड। अगर इंडिया में देखेंगे हम, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा वेस्ट लैंड है। हम देखते हैं यहाँ पे वेस्ट लैंड्स में जो जिन पे हम कभी एग्रीकल्चर किया भी करते थे वो भी वेस्ट हो गई है, या सैलिनिटी बढ़ जाती है लैंड की, अल्कलिनिटी बन जाती है। माउंटेन्स एरियाज रीजन्स में बहुत ज़्यादा वेस्ट लैंड है, डेजर्ट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखते हो फॉर एग्जांपल राजस्थान में आज हम राइस भी प्रोड्यूस करते हैं, वो कैसे, जब हमने वहाँ पे एक कैनाल कंस्ट्रक्ट की है, इंदिरा गांधी कैनाल, तो उसकी वजह से वहाँ पे पानी आ गया, तो डेजर्ट्स में भी हम राइस कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डेजर्ट्स भी वेस्ट लैंड है। तो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा वेस्ट लैंड है, इंडिया में या वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वेस्ट लैंड है, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू क्रॉपर्ड एरिया। इससे क्या होगा, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन, इसकी डिमांड जो है वो पूरी हो सकेंगी, ठीक है ना। तो जितनी जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, हमें डिफरेंट वेज देखने हैं कि हम कैसे जो है क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो इसमें एक जो इंपॉर्टेंट है कि क्रॉपर्ड एरिया हमें इंक्रीज करना है, जो मैंने कहा वेस्ट लैंड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है ना। द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, जो नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन मीन सिंपली साल में हम कितने क्रॉप्स ग्रो करते हैं, इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल J&K में देखते हैं हम एक साल में एक ही क्रॉप लेते हैं हम, या फॉर एग्जांपल इंडिया में देखोगे आप कहीं पे 2 लेते हैं हम, 3 भी कहीं पे लेते हैं। तो अगर हम क्या कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ क्रॉप्स है, जिन जगहों पे क्लाइमेट परमिट करेगा हमें, तो वहाँ पे हम जो क्रॉप्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगे। हम अपना जो क्रॉपिंग सीजन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ऐसे भी प्रोडक्शन बढ़ सकती है, ठीक है ना। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, ठीक है ना। तो इरिगेशन जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है ना। तो इम्प्रूव जो करनी है, कौन सी फैसिलिटीज़ करनी है, इरिगेशन फैसिलिटीज़। जैसे मैंने कहा इरिगेशन वेरी मच इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया की बात करेंगे, एग्जांपल में दे रहा हूँ, तो इंडिया हमारी कंट्री, इसकी एग्जांपल में दे रहा हूँ आपको। इंडिया में देखेंगे हम ओनली सम 40% एरिया जो है इट्स इरिगेटेड, ठीक है ना। 40% एरिया इरिगेटेड है। रेस्ट ऑफ द जो क्रॉपर्ड एरिया की बात मैं कर रहा हूँ, जो 40% क्रॉपर्ड एरिया है दैट्स इरिगेटेड। जो बाकी एरियाज हैं, जो बाकी रिमेनिंग क्रॉपर्ड एरिया रहता है, वहाँ दैट इज नॉट इरिगेटेड, ठीक है ना। इरिगेशन मीन्स कि वहाँ पे इरिगेशन हम ट्यूबवेल से कर सकते हैं, हम टैंक से कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल कैनाल इरिगेशन एक इरिगेशन है। तो बाकी जो एरिया है वो रेन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इंडिया में भी देखोगे आप, जो रेनफॉल है ये एरेटिक होती है, अपने टाइम पे नहीं होती है। इसकी वजह से जो कभी कभी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं, कभी बहुत कम होती है, ये ड्रॉट्स आते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ हम कर सकते हैं कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, हम इरिगेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा इंडिया में ओनली 40% ऑफ द एरिया इज क्रॉपर्ड एरिया स्टिल इरिगेटेड, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं 60, 70, 80 तक अगर हम ले जाएंगे, तो वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है आएगी हमें, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्ड, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हम देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, तो ये भी हो रहा है, ये भी हो भी रहा है इंडियन एग्रीकल्चर में। फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है आजकल। और हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स का यूज़ करना। जो हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स है HYV सीड्स, ठीक है ना, ये नए सीड्स है, तो इनसे जो प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो हम ट्रेडिशनल सीड्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो इनका कंसेप्ट जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा आ गया। अब बहुत सारी जगहों पे ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जो है यूज़ किए जाते हैं, तो इससे भी जो है प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो सकती है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है जो हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को हम डेवलप कैसे करें, मीन्स के क्रॉप प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने डिस्कस किए। पहला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इट इज़ इंक्रीजिंग क्रॉपर्ड एरिया। जो क्रॉपर्ड एरिया है, जैसे मैंने कहा, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा वेस्ट लैंड बहुत ज़्यादा होती है, तो वेस्ट लैंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू
क्रॉप्ड एरिया, वेस्टलैंड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्रॉप्ड एरिया डिफरेंट तरीकों से। द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, जितने हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हम जो नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन है इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज़, तो इरीगेशन फैसिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा हमें, तो इससे भी इंक्रीज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके भी हम क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और जो सीड्स है स्पेशली, ठीक है ना, जो सीड्स का यूज़ हम करते हैं वो हम हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स करें, HYV सीड्स का इस्तेमाल करके हम क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। यस, और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम डिस्कस, ये जो इसी में आता है कि मशीनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है ना। जैसे आप इंडियन एग्रीकल्चर देखते हो, आप इंडियन एग्रीकल्चर में अभी मशीनाइजेशन का कंसेप्ट जो वो बहुत ही कम है, बहुत कम मशीनें यूज़ होती है एग्रीकल्चर में एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज में। देखोगे आप, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस दे आर डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, बट इन इंडियन एग्रीकल्चर इफ वी सी स्टिल मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस दे आर डन विद ट्रेडिशनल टूल्स, दे आर डन विद हैंड्स, ठीक है ना। तो अगर हम मशीनाइजेशन करेंगे एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स का यूज़ करें एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में, तो इट कैन बी वन ऑफ द एस्पेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। Yes. तो द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी, जो अल्टीमेट एम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, ठीक है ना, जो हमने एस्पेक्ट्स इसके डिस्कस किए कि क्रॉप एरिया इंक्रीज करना है, इरिगेशन फैसिलिटीज इंक्रीज करनी है, या मशीनाइजेशन करना है एग्रीकल्चर का, या फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है, या इरिगेशन ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को इरिगेशन के तहत लाना है, तो इसका अल्टीमेट एम क्या है? फूड सिक्योरिटी। इसका अल्टीमेट एम क्या है? फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी मीन्स कि एवरी पर्सन ही शुड गेट सफिशेंट फूड, ठीक है ना। तो इसका अल्टीमेट एम है कि जो ह्यूमन बींग्स है अर्थ पे, इनकी फूड सिक्योरिटी जो है वो कायम रहे। यस, अगर हम अब बात करते हैं, एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट प्लेस में एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हुआ है, ठीक है ना। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन लाइक इंडिया, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, बांग्लादेश एक डेवलपिंग कंट्री है, मैं एशिया की बात यहाँ पे ज़्यादा करता हूँ, या बाकी डेवलपिंग कंट्रीज जो है वर्ल्ड की या एशिया की, फॉर एग्जांपल, जो इनमें हम बात करते हैं, इन डेवलपिंग कंट्रीज की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वो कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं? इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर में, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, डिस्कस किया हुआ है, जिसमें क्रॉप्स जो है स्मॉल होल्डिंग्स होती है, ठीक है ना, कुछ हेक्टर्स की होल्डिंग होती है, ये बहुत स्मॉल होल्डिंग्स होती है। तो मोस्टली किसके लिए गौर करते हैं? सब्सटेंस, तो अपने लिए ज़्यादातर क्रॉप जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है ना। जो फैमिली होती है फार्मर की, उसके लिए ज़्यादातर क्रॉप जो है ग्रो किए जाते हैं, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे जिक्र किया, जो डिफरेंट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है, अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं पहले, तो इनमें जो लार्ज पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो कौन सा एग्रीकल्चर यूजुअली प्रैक्टिस किया जाता है यहाँ पे? दैट्स कॉल्ड एज इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है ना। इंटेंसिव एग्रीकल्चर जिसमें होल्डिंग जो है वो स्मॉल होती है, और एग्रीकल्चर जो है यूजुअली किस लिए किया जाता है? फॉर फार्मर एंड हिज फैमिली। जो प्रोड्यूस होता है दैट्स यूजुअली कंज्यूम्ड बाय फार्मर एंड हिज फैमिली, एज कंपेयर्ड अगर देखेंगे जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, ठीक है ना। जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहाँ पे क्या होता है? लार्ज होल्डिंग्स आर मोर स्टेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ भी ध्यान देते हैं, लार्ज होल्डिंग्स जहाँ पे होते हैं। तो कहाँ पे होती है? चलो अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर देखेंगे हम, तो 1.5 हेक्टेयर की एवरेज होल्डिंग होती है, ठीक है ना। तो लेकिन 1.5 हेक्टेयर की एवरेज होल्डिंग होती है, लेकिन अगर हम देखेंगे यूएसए की, या कनाडा की, या ऑस्ट्रेलिया की, ये डेवलप्ड कंट्रीज है, अगर लैंड होल्डिंग्स देखेंगे हम यहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है लैंड होल्डिंग्स, ठीक है ना। हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स जो होती है, हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स, समटाइम्स 500 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर, 300 हेक्टेयर, एक लैंड होल्डिंग होती है, ठीक है ना। तो वो किसके लिए सूटेबल होती है? वो होती है कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है ना। वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस होते हैं दे आर डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, HYV सीड्स का यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो एग्रीकल्चर जो है दैट इज सुटेबल फॉर कमर्शलाइजेशन, वो कमर्शलाइजेशन के लिए सुटेबल होता है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है ना, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है अभी भी एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। तो बेटा ये हो गया हमारा टॉपिक जो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नए टॉपिक में देखेंगे, नया जो पढ़ना होगा मैं। थैंक यू वेरी मच।